Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Syed Mutin here. So this video is all about the equipments, what equipment we use in our daily life for self content creation, for client work, for everything. हम जो equipments इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. देखो guys, equipment एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक एवरेज कंटेंट क्रिएटर से थोड़ा बेहतर बनाता है. आई एम नॉट सेइंग कि जिसके पास equipments नहीं होते हैं इस तरह के वो अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते. बट अगेन इफ़ यू आर ओनिंग सम गुड प्रोफेशनल इक्विपमेंट, आपकी वीडियो बेहतर होने वाली है और उसका फ़ायदा भी आपको होगा. इट विल मेक यू अ बेनिफिट इन ऑल द वेज एंड विथ टाइम आपकी ग्रोथ के साथ आपके इक्विपमेंट्स को भी ग्रो करना एक अच्छी बात है क्योंकि इट विल मेक योर कंटेंट बेटर ईच डे. Alright, so let's talk about the very first equipment I use in my work is iPhone 14 Pro. Right now I'm using the iPhone 14 Pro camera for all my ground shots, for all my YouTube videos, for all my YouTube shorts, reels, for everything I use my iPhone 14 camera itself. I don't have a DSLR as of now. I'm planning to purchase, but आपके लिए iPhone बेहतर है. The thing is कि I want to suggest one thing. iPhone अगर आपके पास है, अगर आउटडोर शूट है तो आप नॉर्मल आईफोन में कैमरा यूज़ कर सकते हो. सिंस इट अरेंजेस द लाइट्स ऑटोमेटिकली, वो आप जितना भी आप लाइट सेटअप करो आईफोन विल अरेंज इट ऑटोमेटिकली. सो फॉर दैट थिंग आउटडोर्स के लिए इट्स अ बेस्ट ऑप्शन. व्लॉग्स, प्रॉपर्टी वीडियोज़, रियल इस्टेट, वॉट एवर यूर शूटिंग, आउटडोर्स के लिए बेहतर ऑप्शन है आईफोन का सेल्फ कैमरा. बट अगेन इफ़ यू हैव अ प्रोफेशनल सेटअप लाइक दिस, अ सॉफ्ट बॉक्स, अ लाइट, बैकग्राउंड लाइट्स, और आपके पास हर एक वो चीज़ है जो इंडोर में काम आ सकती है. इफ़ यू आर शूटिंग इंडोर, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, अगर आप इंडोर में शूट कर रहे हो तो डू नॉट यूज़ आईफोन सेल्फ कैमरा, यूज़ फाइनल कट प्रो कैमरा. यू विल गेट इट इन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर जहाँ भी. एंड फाइनल कट प्रो कैमरा इज मेड बाय एन एप्पल इटसेल्फ, तो टेंशन की कोई बात नहीं है. I'll tell you the basic difference between the normal camera, iPhone camera and the Final Cut Pro camera. डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस इतना है कि iPhone का कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली लाइट को सेट कर लेता है अपने हिसाब से. बट Final Cut Pro will give you options, manual options. You can set up however you want to. Like हमारे पास मैनुअल कैमरा में हम ऑप्शंस रहता है ना, वैसे Final Cut Pro कैमरा में हमको ऑप्शंस मिलेंगे. Like it will not set your lights automatically. For example, what happens is, in my case, when I started making videos, जब भी मैं iPhone का खुद का कैमरा यूज़ कर रहा था, the light here it arranges automatically and it makes dark. And if I'm increasing the light background, वो अपने आप कम करता था. So I wasn't having any solution for that. So one of my YouTuber friends suggested me use Final Cut Pro camera. It doesn't arrange the lights according to itself. It gives you an option of arranging. आप कुछ भी कर सकते हो ऐप में. You can arrange the lights, or if you don't arrange anything, just use it as it is. It will not disturb your lights, it will not disturb you, even if at all you're roaming around in a room and coming back after some time. That's how it works. Okay, coming back to iPhone 14 Pro, you can use any iPhone Pro series. You can use a normal series also, but if you're able to afford Pro series, go for it. It will shoot your videos professionally. जहाँ भी हो, outdoor, indoor, it works better for me. For right now, I'm using it. All right. Future में देखा जाएगा, अगर कैमरे की ज़रूरत है तो वो भी खरीदेंगे. All right. The next thing is I use gimbal for outdoor shoots. Indoor के लिए of course I have a tripod. I can shoot in that. Right now I'm recording in it. So indoor के लिए आपको एक gimbal की ज़रूरत पड़ेगी, especially for the moving shots. जब आप मूव कर रहे हो, gimbal will help you make your video stable. I know a lot of software has stabilization as of now editing applications में, but बेहतर ये रहेगा कि आप वीडियोस को स्टिल रखें, स्टेबल रखें. इट विल हेल्प बिकॉज एडिटिंग में आपका काम बचेगा, एडिटिंग में आपका वक्त बचेगा ऑफ कोर्स. सो गिम्बल प्रोवाइड्स यू द स्टेबिलिटी, गिम्बल प्रोवाइड्स यू स्मूथ रोटेशन. जब भी आप हाथ रोटेशन करते हो, यू कैन डू दैट इफ़ यू आर प्रोफेशनल इन इट, बट आपको ईजिएस्ट वे है गिम्बल. इट हैज़ दैट कर्सर, तो ईजिली आप मूव कर सकते हो हर चीज़ को. सो फॉर आउटडोर शूट्स आई यूज़ गिम्बल, मूविंग शॉट्स, आउटडोर शूट्स, एंड ऑल्सो DJI गिम्बल विच आई यूज़, इट हैज़ इनबिल्ट ट्राइपॉड जो आप टेबल पर रख के भी यूज़ कर सकते हो. एंड DJI एप्लीकेशन में आपको एक ट्रैकर मिल जाता है अपने आप कि आपका फेस ट्रैक होगा. इट्स वेरी यूजफुल फॉर इन्फ्लुएंसर्स जो भी फेस वीडियोस बनाते हैं. यू कैन यूज़ DJI इनबिल्ट एप्लीकेशन विच ट्रैक्स योर फेस वेर एवर यू गो. इट्स बेस्ट फॉर द जिम वीडियोस आई गेस. And the Pro gimbals, the 7 Pro and the 8 Pro has a separate tracker as well, so that it can act as an action drone, right? जो fast moving things को, objects को वो capture करेगा, track करेगा like that. So the next thing is we'll come to microphone, and guys this is very important. वीडियो में दो चीज़ों की वजह से ही वीडियो हिट होती है. एक, quality of your sound,
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, क्वालिटी ऑफ योर वीडियो की क्वालिटी अगर ख़राब भी हो तो वीडियो चल जाएगी, बट साउंड क्वालिटी हैज़ टू बी टॉप नॉच. Okay, so when I started my career, I used to use this Boyaca wired microphone, which comes around 800 to 900 rupees, I believe. Right now, I don't know what's the prices. लेकिन उसके साथ आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा Apple से, which is like this, jack to lightning. बिना इसके you will not be able to connect to your iPhones. For camera, I believe you can connect directly, but for iPhone, you need this. So सब मिला के it will cost you around 2000 rupees. A very worthy gadget, I believe, because इसमें मैंने around 50 to 80 videos record किए हैं. It is the best when it comes to budget friendly microphones. Okay, so next I purchased is Extreme K Acoustix microphones. There are Bluetooth microphones. I didn't use them much, 5 to 6 videos I believe. It has 2 flaws in it. पहले तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है. If you tuck in it, आपके टी शर्ट गिर जाएगा. दूसरा, हमारी वॉइस से ज़्यादा ये बाहर के वॉइसेस को रिकॉर्ड करता है, लाइक आउटडोर साउंड्स. डोर के बाहर अगर कोई बात कर रहा हो तो इट रिकॉर्ड्स. एंड फॉर दैट सेक आई डिडंट लाइक द मच, बट आई डिडंट यूज हिम एज वेल. आई एम प्लानिंग टू सेल देम दो. So next we will move to this microphones. This is a condenser microphone from Creo. इसकी सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है कि it's durability. ये completely metal से बना हुआ है. It's completely metal built. इसकी पूरी body metal से बनी हुई है. The next good thing is it has a 2 output ports, एक USB और एक C type. C type आप directly अपने Mac से connect कर सकते हो and iPhone 14 Pro के ऊपर वाले models के साथ connect कर सकते हो. So if you have a model of Lightning, you have to purchase a connector which is from USB to Lightning Apple से. It is the only one connector they have with them आपके लिए. So आप वो परचेस कर सकते हो. और बाकी इट गिव्स यू वेरी गुड साउंड क्वालिटी. आपका जो बेस है वो भर के आता है वीडियो में. सो आई यूज इट ओनली फॉर द बेस. एंड नेक्स्ट वी विल कम टू DJI माइक्रोफोन्स. दीज माइक्रोफोन्स आर बिट एक्सपेंसिव दैन दिस Creo. ये आई परचेज अराउंड 6000, बट DJI वन इज अराउंड 32,000 रुपीज़. एक मेजर डिफरेंस इसमें ये है कि आपको रिकॉर्ड करने के बाद DJI में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्डिंग के बाद आपको एडिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. इन Creo इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग, माइनर आपको बैकग्राउंड साउंड्स आएंगे एंड ऑल्सो बेस बहुत ज़्यादा होगा. यू हैव टू यूज़ कंप्रेसर, यू हैव टू यूज़ चैनल EQ एंड ज़रूरत पड़ी तो आपको वॉइस ओवर वाला फिल्टर भी यूज़ करना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर यूजिंग DJI माइक्रोफोन्स, इट स्मूथन्स द वॉइस ऑटोमेटिकली. जब भी आप बात करोगे आउटपुट उसका स्मूथ से ही रिकॉर्ड होगा एंड इट कैंसल्स एंड अवॉइड्स अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड साउंड. वो कोई भी बैकग्राउंड साउंड को रिकॉर्ड नहीं करेगा एंड इट इज़ वेरी ईजी. आपको बस एक एयरपोर्ट जैसा बॉक्स रहेगा. यू हैव टू ओपन इट, यू हैव टू प्लग इट, यू हैव टू कनेक्ट इट एंड स्टार्ट स्पीकिंग. सो यूज़ करना बहुत अच्छा है. आउटडोर इंडोर दोनों के लिए बहुत अच्छा है. सो एंड एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. वन चार्ज वन माइक्रोफोन वर्क्स अप टू 13 आवर्स. सो बोथ मिला के आपको एक 25 से 26 घंटे का आउटपुट मिलता है. लास्टिंग मिलती है. राइट, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू DJI माइक्रोफोन्स. DJI माइक्रोफोन्स में और Creo के माइक्रोफोन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, प्राइस में भी और कामों में भी. प्राइस डिफरेंसेस, दिस इज समवेयर अराउंड 6000 रुपीज़ और DJI माइक्रोफोन्स विच आई एम यूजिंग राइट नाउ इट इज़ 32,000 रुपीज़. प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस इसीलिए है, पहले तो इसमें 2 कनेक्टर मिल जाते हैं. फर्स्ट इज लाइटनिंग, अनदर वन इज C. एंड सबसे अच्छी एक क्वालिटी एक और अच्छी है, विदाउट रिसीवर इट कैन रिकॉर्ड इटसेल्फ. हाँ, जो सिंगल माइक्रोफोन्स आपको दिख रहे हैं वो अपने आप रिकॉर्ड भी करते हैं बिना किसी रिसीवर के. द थर्ड गुड थिंग इज कि इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग. एक माइक्रोफोन कैन वर्क अप टू 12 to 13 आवर्स. सो अगर आप सिंगल हैंडेडली उसका यूज़ कर रहे हो, बोथ द माइक्रोफोन्स विल गिव यू 26 आवर्स लास्टिंग. एंड बहुत ईजी है, आपको एक सेपरेट से चार्जिंग नहीं करनी इसकी. इट कम्स इन अ एयरपोर्ट बॉक्स जैसा इसका स्ट्रक्चर है. आप सीधे बॉक्स को चार्ज करोगे, द रिसीवर एंड अ माइक्रोफोन गेट्स चार्ज ऑटोमेटिकली. सो इट्स वेरी वॉलेटाइल. ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है इसमें. आपकी आवाज़ को फिल्टर अच्छे से करता है. नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल रिमूव कर देता है. नो बैकग्राउंड नॉइजेस. इट्स वेरी ईजी टू यूज़. बहुत हल्का है एंड इट्स ट्रांसपेरेंट एज वेल. आप लगाओगे, यू विल नॉट फील इट दैट you will not feel at all कि आपने माइक्रोफोन लगाया हुआ है. So these are the advantages. But coming back to this wide microphone, ये वॉइस को स्मूथ नहीं करेगा, ये आपके बेस को ज़्यादा रखेगा. So both the microphones are good in their own terms. ये बेस के लिए बहुत अच्छा है और वो स्मूथ वॉइसेस के लिए बहुत अच्छा है एंड आउटडोर्स के लिए बहुत अच्छा है. So advantage, अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, you can go for DJI because DJI का मिनी वर्जन्स भी आपको 10, 12, 14 हज़ार के अंदर मिल जाएंगे. But if you're a person who shoots indoor, majority like 90-95% आप इंडोर ही शूट करते हो, गो फॉर दिस वन, इट इज़ वेरी गुड. गाइस, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू एरियल शॉट्स, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं DJI का Air 3S ड्रोन. देखो, मेरा काम ज़्यादातर रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड ऑल्सो व्लॉग्स के लिए. तो व्लॉग्स के लिए सिनेमैटिक क्लिप्स मुझे मिल जाती हैं एंड रियल इस्टेट के लिए आई विल बी एबल टू कैप्चर द होल प्रॉपर्टी हाउ मच एवर बिग इट इज़. सो एरियल शॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अट्रैक्शन एज वेल. और स्मूथ मूवमेंट्स होता है और इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती. सो लॉट ऑफ
ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एडिटिंग में भी, बिकॉज यू डोंट हैव टू रिमूव द साउंड बिकॉज इट डजंट रिकॉर्ड इट सेल्फ. सो दिस ड्रोन इज़ वेरी बेस्ट एट इट्स प्राइस. एंड ऑल्सो आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, इस ड्रोन के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज इट इज़ अबव 249 ग्राम्स. इन इंडिया एक्चुअली द ड्रोन्स आर बैंड, लेकिन अगर 249 ग्राम्स के वेट के नीचे रहेगा तो यू कैन यूज़ इट फॉर योर प्रोफेशनल पर्पसेस. बट दिस ड्रोन रिक्वायर्स लाइसेंस, सो बिना लाइसेंस के आप इसको उड़ा नहीं सकते. बैक टू द ड्रोन यूजेज. देखो इसमें 3 बैटरीज दी जाएंगी आपको पूरे सेट में. 1 बैटरी लास्ट अप टू 20 मिनट्स. एक बैटरी आपको 20 मिनट तक का आउटपुट देगा. सो 3 बैटरीज समवेयर अराउंड 1 आवर. सो 1 आवर आपका फ्लाइट टाइम होने वाला है इस ड्रोन में. आई गेस यू कैन टेक शॉट्स विद इन 20 to 30 मिनट्स. अगर आपको उधर स्टिल भी रखना है ड्रोन को तो यू कैन यूज़ ऑल द 3 बैटरीज. एंड इसका अलग चार्जर आता है जिसके वजह से आप फास्ट इसको चार्ज कर पाओगे. सो दिस इज द थिंग. ड्रोन इज वेरी यूजफुल थिंग फॉर मी एटलीस्ट. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स कम बैक टू माई मैक. इट्स अ मैकबुक M2 वर्जन. आई हैव परचेज दिस रिसेंटली. इट्स अ वेरी यूजफुल गैजेट आई बिलीव. अगर आपके पास आईफोन है और अगर आपके पास आई वॉच या फिर आईपैड जो भी है, अगर आपके पास सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स हो तो योर लाइफ बिकम्स वेरी इजी आई बिलीव. इसको लेने के बाद मेरी एडिटिंग फास्ट हो गई, मेरा काम सिंपल हो गया, मेरा स्टोरेज के लिए मुझे जगह मिल गई. एंड ऑल्सो द स्ट्रेस इज़ लो. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम हो जाता है क्योंकि फ़ोन में जब आप एडिटिंग करते हो उसके क्लिप्स और उसके जो टाइम लाइन है बहुत छोटा है. सो यू हैव टू फोकस ऑन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से आपका सर भी दर्द होगा एंड योर डैमेजिंग योर आइज. अगर मैक में यू हैव अ बिग स्क्रीन, यू गेट अ क्लिप्स बिगर एंड इट इज़ वेरी इजी सो दैट यू कैन सिट लाइक दिस. जब मैं मोबाइल में करता था माई हेड इज़ ऑलवेज लाइक दिस एंड माई आइज आर लाइक दिस एंड माई बॉडी पेन स्टार्ट्स. नाउ आई कैन एडिट आराम से स्मूथली. एंड ऑल्सो जो ड्रोन के शॉट्स होते थे, आईफोन टेक्स अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम टू रेंडर. मैकबुक डज अ वेरी गुड जॉब ऑन इट एंड दिस वन डज वेरी क्विकली. बहुत सारे और चीज़ें कर सकते हैं. यूट्यूब हैंडल इसमें ईजी है कंपेयर टू मोबाइल फोन्स. यू कैन वॉच मूवीज इन हाई क्वालिटीज, yes, obviously big screens, and a lot more guys, and a lot more editing. So of course I have said this, and for me it was a very great investment to be very honest. Okay guys, that's it for today. These are the basic equipments we use for our work. हमारे डेली लाइफ में यही इस्तेमाल होते हैं. एंड और बहुत चीज़ें हैं, लाइटिंग सेटअप, यूट्यूब सेटअप, एवरीथिंग. सिंस आई एम अ न्यू यूट्यूबर आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग स्टार्टिंग से. बहुत लोगों को लगता है कि बहुत महंगे सेटअप्स होते हैं, बहुत महंगे चीज़ें लेनी पड़ती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. अ वेरी मिनिमल बजट में आप बहुत अच्छी क्वालिटी के कंटेंट दे सकते हो. सो अबाउट लाइटिंग एंड अबाउट सेटअप्स वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट अ वीडियो ऑन लाइटिंग सेटअप एंड अ यूट्यूब सेटअप. बेसिक का सेटअप जो मेरा है उस सेटअप के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, यू कैन लेट मी नो. एंड यस, आई विल मीट यू इन द अनदर वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.